ओके, सो जैसे एडवर्ब्स हैं, हम अपने स्कूल, आई एम श्योर आपने अपने स्कूल टाइम पे एडवर्ब सीखे होंगे, आपको आइडिया होगा। जैसे कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ब्स लेते हैं, क्विकली, स्लोली, हैप्पीली, सैडली। ऐसे जब हम वर्ड्स में ly लगा दिया तो लाउडली, कुछ भी इस तरह से जब हम ly लगा देते हैं वो बन जाता है एडवर्ब। वर्ब होता है समथिंग विच इज शोइंग सम एक्शन, और एडवर्ब होता है जो उसी एक्शन का एक मॉडिफिकेशन दिखाता है या उसी एक्शन को डिस्क्राइब करता है। सो एडवर्ब इज समथिंग दैट डिस्क्राइब्स or modifies the verb. I'll just quickly give you the definition just for simple understanding. Okay. I'm putting this in the chat box just for understanding. I know this is really kiddish that we start with definition, but unless and until we know the base of something, it's difficult to reach the destination properly. So quickly, loudly, slowly, sadly, these are some of the adverbs जो हमने स्कूल में पढ़े हैं, हमको इनका यूज पता है। हम बात करेंगे अब कुछ ऐसे एडवर्ब्स की जो अब हमें एडवांस्ड लेवल पे मदद देंगे। इनको हम कहते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब्स। We will discuss about conjunctive adverbs. मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया देती हूँ पहले। सो कंजंक्टिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, जो अलग अलग फ्रेजेस को, क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, हमारे सेंटेंस को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, रिच बनाते हैं हमारी कॉन्वर्सेशन को। हम जनरली क्या होते हैं, जब छोटे बच्चे इंग्लिश सीखते हैं, वो छोटे छोटे वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करके बनाते हैं। I want to go to Mumbai and I will purchase something there. Small kids, they say like this, they make sentences like this. But we as adults, how do we need to modify the same sentence? Luckily, I'm planning to visit Mumbai and I would be really glad if I'll be able to purchase some of the favorite things. ऐसे luckily, fortunately, happily, glad, in a glad way, ऐसे जब हम वर्ड्स, मैंने उसी सेम सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स दो चार डाले, उससे मेरी कॉन्वर्जेशन का इम्पैक्ट ही अलग हो गया। सो दिस इज व्हाट कंजंक्टिव एडवर्ब्स आर डूइंग फॉर अस। दे हैव अ नंबर ऑफ पर्पस, दे हैव सम कॉन्ट्रास्ट, सम रीजन, or some kind of cause which is to be associated, some cause and effect, maybe some kind of summary. So these are the usage of these conjunctive adverbs that we will be now discussing. एक होता है, मतलब अब मैं कुछ लिस्ट ऑफ एडवर्ब्स की बात करती हूँ जो हम अपनी राइटिंग में, स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस। एडिशनली कोई मीनिंग बताना चाहे, सो आई वुड बी हैप्पी टू नो। What is, yeah. कोई ट्राई करेगा इसका मीनिंग? एडिशनली हम बोलते हैं ऐसा, मतलब इसके अलावा किसी सेंटेंस में रेफरेंस देता है तो इन एडिशन we are talking about something and in continuation or with the true, extra thing, yeah, extra point, something like that. हाँ बिल्कुल। सो कुछ भी एडिशनल या एक्स्ट्रा बताने के लिए we use the verb additionally. Let me give you one sentence too. Additionally, हाँ. So let's say I'm writing an email, I am passing on any information, so I want that person to share additional information with that girl, with some girl, whatever. So additionally, she wants more information besides what you have already shared with her.
maybe that is not sufficient. कुछ extra, कुछ in addition to. In addition to what you, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं sentence को. She wants more information. मतलब दोनों का एक ही है. एडिशनली के बाद पंक्चुएशन लगाना पड़ेगा हमें ऊपर. लगा सकते हैं, कंपलसरी नहीं है. ओके. Just to give that pause, क्योंकि वो जो कॉमा हम लगाते हैं, it is to denote that pause in the sentence. If a reader is reading, he should have that pause in his mind. So not a compulsion, but yes, if you use it, it is good. It will make your that text look presentable. Okay. I'm using Google just to get that list. Otherwise, next is otherwise, that we use to depict some kind of cause or effect. If you don't do this, otherwise you will be punished. Otherwise की जगह पे हम else भी लगा सकते हैं. मैं यही ना इसके नीचे लिख देती हूँ. हम else भी लगा सकते हैं, एक ही बात है. हिंदी में ऐसे बोलते हैं हम, आप इस बात को फॉलो करो, इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस फॉलो करो, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा. It is referring to that. तो पहले हम कुछ वर्ड्स देखेंगे थियोरेटिकली, फिर हम इनको प्रैक्टिकल फॉर्म में इम्प्लीमेंट करेंगे. यहाँ तक अगर नोट कर लिया हो, बता दीजिए, आगे बढ़ती हूँ. तो जैसे लाइक नॉर्मली जब हम बात करते तो हम बोलते हैं ये तुम करो, नहीं तो ये होगा. दैट हाँ. नहीं तो इज अदरवाइज, राइट? हाँ, दैट नहीं तो इज अदरवाइज. जब हम किसी एक्शन का रिएक्शन बता रहे हैं, अगर आप मास्क नहीं पहनोगे तो आपको कोरोना के होने के चांसेस ज्यादा हैं. मास्क पहन लो, नहीं तो कोरोना का खतरा ज्यादा हो जाएगा. वेयर द मास्क, अदरवाइज और एल्स यू विल बी अफेक्टेड बाय कोरोना. Yes, right. कॉन्सिक्वेंस, कोई एक्शन, कोई सिचुएशन ऐसी हुई जिसकी वजह से सामने वाले पे कोई प्रभाव पड़ा, अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है. किसी ने अच्छा काम किया, उसको अच्छा रिजल्ट मिला. सो basis that consequence or action, we are using consequently. Pronunciation is consequently. जैसे Ram did not study properly, it was his mistake.
he did not study intentionally, he did not study well, consequently he failed. मतलब क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो फेल हो गया. उल्टा भी हो सकता था. Ram studied hard. He really worked hard for his exams. Consequently, he achieved first position. So, basis that consequence or action, good or bad, it is decided whether the result will be good or bad. But the things are related to each other. क्योंकि पढ़ाई नहीं करी इसीलिए रिजल्ट खराब आया. तो हमेशा consequently यूज करते टाइम कोई ना कोई एक्शन दूसरे पे डिपेंड हो रहा होगा. तो इसमें भी आफ्टर एक्शन हम लगा सकते हैं, नहीं वो ऑप्शनल है? पंक्चुएशन पूछ रहे हो? ऑप्शनल है. मैंने यहाँ लगा दिया प्रॉपरली के बाद में. मुझे लगा यहाँ एक पॉज आना चाहिए जिससे रीडर्स का ध्यान ऐसे पड़े कि राम ने पढ़ाई नहीं करी, आगे क्या हुआ होगा, पॉज. तो माइंड को वैसा ही सिग्नल मिलेगा, ओके पॉज, अच्छा आप पढ़ते हैं आगे क्या हुआ है, ओ वो फेल हो गया. इसीलिए मैंने प्रॉपरली के बाद लगा दिया. ठीक. सो ये लिबर्टी, ये थोड़ी सी लिटरेचर लिबर्टी मिलती है कि आप अपने पंक्चुएशंस, हाँ जहां जरूरी है, सपोज यहाँ क्वेश्चन मार्क होता है वो तो हमें लगाना ही पड़ता, बट कुछ जगह पे यू गेट द लिबर्टी टू पुट कॉमा बाय योर ओन चॉइस, बिकॉज यू आर राइटिंग, सो यू आर द डिसाइडर टू डिसाइड at which point of time you want your readers to stop, to pause, like that. Okay. हिंदी में हम बहुत इस्तेमाल करते हैं इसलिए, और इंग्लिश में आज भी मैं किसी को ना सो का यूजेज बता रही थी. सो वहां पे मैंने ये एग्जांपल दिया, मैंने कहा जब हम कॉन्वर्जेशन में स्टक हो जाते हैं, कभी सोचते सोचते बोलते बोलते, सो व्हाट वी डू, वी सिंग अ सॉन्ग यूजिंग सो. Yesterday I was standing near the market, so it started raining heavily. So I decided to make a phone call. So it suddenly stopped. जो भी, तो ये सो करके ना ये आदत होती है गाना गाने की. हम क्या कर रहे होते हैं, हम सोचते सोचते ना उस फिल इन द ब्लैंक में सो ऐसे लंबा सा लगा देते हैं, जो कि बहुत अनोइंग होता है और सुनने वाले सो जाते हैं. हाँ जी. सो जाते हैं, सो हाँ, कोई एक आधी जगह जहाँ जरूरी है वहां तो आप सो लगाइए, बट इतना ज्यादा सो भी मत लगाइए कि सामने वाले सो जाए. और गाना बिल्कुल नहीं, हम सो करके गाना प्लीज मत गाइए. उसकी जगह पे एडवांस्ड इंग्लिश में हम देयरफॉर लगाएंगे. अब ईमेल में सो लिखोगे, मैनेजर को अच्छा नहीं लगेगा, और लगेगा, है ना. बार बार अगर सो आ रहा है, एक जगह सो और एक जगह देयरफॉर, थोड़ा सा अच्छा लगेगा. हाँ देखो ये कुछ प्रेजेंटेबल है. हेंस भी रिप्लेस कर सकते हैं ना हम देयरफॉर. हेंस का थोड़ा सा अलग होगा. हाँ मतलब कर सकते हैं. हाँ, उसका बस देयरफॉर और हेंस ना हल्के से कई बार अलग हो जाते हैं अलग यूज करते टाइम. लाइक हाँ हाँ हेंस, हम हेंस अब जब बोलेंगे, लाइक जब हमने पूरी बात बता दी, इस हाँ, वजह से ये हुआ, बिल्कुल. तो हेंस दिस हैपेंड. हाँ, right? hence this happened. Yeah. हाँ, एंड देयरफॉर हम इसीलिए यूज करेंगे. जब हम इसलिए लगाते हैं ना, जैसे मैं लिखा I missed my deadline, therefore I apologized. अब इसका ही हेंस में से बन सकता है, आई मिस्ड माय डेडलाइन, देयरफॉर माय प्रोजेक्ट गॉट रिजेक्ट हाँ, समथिंग my work got delayed, my boss was disappointed, yeah, therefore my boss was disappointed. कुछ भी बना लो, मेरे को तो बस इसलिए समझाना है क्योंकि मैंने अपनी डेडलाइन मिस करी, काम पूरा नहीं करा, इसीलिए मैंने उसके लिए जाके अपॉलजी करा टू माय सीनियर, व्हाटएवर. सो अब सो लगाने के बजाय हम देयरफॉर लगा सकते हैं.
हमें कई बार एक्चुअल लाइफ में नहीं कह रही मैं कि हमें कंपैरिजन अपना किसी और से करना चाहिए, किसी और का खुद से करना चाहिए, वहां पे यूज करने को नहीं कह रही, वो तो हमें करना ही नहीं है कभी। मैं कंपैरेटिवली या कंपैरिजन करने की बात वहां कर रही हूँ जहां पे हम अपने ऑफिशियल वर्क प्लेस पे कभी डेटा के को कंपेयर करते हैं, वो करना पड़ता है। जैसे लास्ट मंथ से इस मंथ में हमारी प्रोग्रेस कैसी हुई, फिर चाहे हम अपनी इंडिविजुअल लेवल पे बात करें या कुछ भी। सो ऐसा कह सकते हैं। चलो मैं लिखती हूँ कुछ। सही बात है। ठीक है, मैंने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल कुछ ज्यादा अच्छा सीखा है, कोई चीज ज्यादा अच्छे से सीखी है, ज्यादा अच्छे से की है। So I believe I have learned better comparatively than last year. In comparison to भी लिख सकती थी मैं, as compared to भी लिख सकती थी, but if I want to use adverb, I will just put comparatively, just to draw that comparison between two things or my data, whatever. आपके जो एडवर्ब्स है ना, इसमें सीक्वेंस का कोई चक्कर नहीं होता कि अंदर आएंगे या सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे, कहीं भी लगा सकते हो आप यूजेज के हिसाब से। आप लास्ट में भी लगा सकते हो, कुछ एडवर्ब्स आएंगे जो हम बिल्कुल सेंटेंस के लास्ट में लगाएंगे, बीच में भी लगा सकते हैं, स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं। दूसरी स्क्रीन से हम लोग बट भी बहुत लगाते हैं। सो बट की जगह पे अब से however लगा सकते हैं। however हमेशा आपकी बात को पोलाइटली बताता है। बट लगाते हैं ना तो वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं एक्सक्यूजेस बना रही हूँ, मैं रीजंस दे रही हूँ अपने काम, अपने किसी चीज को लेके, थोड़ा सा शार्प लगता है। बेटर है मैं इतना ज्यादा बट ना लगा के however लगा दूं। जैसे उसने मुझे सारी बात ठीक से बताई थी, लेकिन फिर भी मुझे और क्लैरिटी चाहिए। सो बट का भी मतलब लेकिन होता है हिंदी में, हाउएवर भी लेकिन है, लेकिन आपके वो उस लेकिन को और प्यार से और पोलाइट और प्रोफेशनल वे में प्रेजेंट करता है। हिंदी में भी लिख देती हूँ, लेकिन या लेकिन फिर भी। अल्टीमेटली हम यूज करते हैं इसको तो काफी बोलते टाइम भी। सो हम किसी, एक होता है ना, एक वर्ड होता है अल्टीमेटम, पता नहीं वो कितना सही है अल्टीमेटम, बट अल्टीमेटली जब हम यूज करते हैं, so it is telling you some kind of, I would say, ऐसा एक बार सेंटेंस लिखती हूँ, then I'll be able to explain better. एक उसके नतीजे में, नतीजा काइंड ऑफ थिंग है ना। हाँ ऐसा ही कुछ, मतलब उसके बदले में, उसके जवाब में, या उसके, हाँ उसके नतीजे में, सही बता रहे हो आप। रेपरकशन मतलब किसी चीज का प्रभाव जब हम पे पड़ता है, हम कुछ गलत करते हैं और उस गलत चीज का जो हम पे प्रभाव पड़ता है, दैट इज रेपरकशन। आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखी है, एक बार इसको पूरा।
एक फर्दर मोर भी होता है जो उसी एडिशनली वाले का रहा ही है, ऐसे याद रख लीजिए। आपने कोई चीज कह दी, आप फर्दर उसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ और ऐड करना चाहते हो। जो बात मैंने आपसे, जो पॉइंट्स मैंने आपसे पहले कहे, उसी के संदर्भ में मैं कुछ और एडिशनल पॉइंट्स भी देना चाहती हूँ। तो आप एडिशनली अगर आपको नहीं लिखना, आप फर्दर मोर भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज को पॉइंट करेंगे। अकॉर्डिंगली भी कॉज और इफेक्ट को डिनोट करता है, जैसे कॉन्सिक्वेंटली करता है, अकॉर्डिंगली इन अकॉर्डेंस टू समथिंग, जैसे वी हैव बीन गिवन सम इंस्ट्रक्शंस, अकॉर्डिंगली वी आर फॉलोइंग देम। हमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसी के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी के अनुसार हम काम कर रहे हैं। दैट इज वेयर वी आर यूजिंग अकॉर्डिंग। हमको जैसे इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं हम उसी के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। ओके, ठीक है, चलो हम फिर परसों कंटिन्यू करते हैं सेम टाइम पे। ओके जी, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय। Bye, good Okay, night. good night. गुड नाइट।